Okay, so again, a very quick introduction. I'm sharing with of Mr. Chalat sir. So he's the founder and CEO of two big companies, Sparrow and Qualitics as well. So he's into the IT, he's into the software, he is into the AI. So he's a big boss right now, who is like capturing everything, whatever he is getting, and he's just capturing everything in the digitalization. And we are very glad, first of all, that you have came here and you would be giving a brief about like how we can excel, how the young entrepreneurs can take the inputs from you and can bootstrap their business. So the first question, sir, we want to know that like after the COVID, especially we saw so many small like business owners who were not having their digital business, they have moved into like digitalization. So how true is that, and how you are means like in your organization as well, and the companies in which you are in contact with them. So how true is that? How much digitalization is right now happening? This is the new normal, like everyone is saying, everyone is quoting, right? The new normal, the new normal. So the digitalization is the new normal. I 100% agree with that, right? People are staying at home, people are not going out, people are not preferring to go to malls, people are not preferring to go on trips, right? So whatever they are doing, they are confined to their own houses as of now, right? So the only thing that connects them with the outside world is the digital media. So be it OTT platforms like Netflix, be it mobile applications, be it games, right? So I'm sure you must have seen all the digital platforms, they were rising. Right. You had games like Ludo, right? Their valuation increased multi-folds. You had OTT platforms like Netflix, you had Prime Video. They were launching new series every other day, right? You had the small mobile applications that were cropping up, right? Were related to e-commerce, some were related to vegetables and stuff, right? So until and unless the corona, the COVID, the whole thing goes away, digitalization is the new normal, you can say, right? The offices, most of the companies have closed the physical offices that they had, right? Even we had a couple of floors in a building in Noida, right? So we have confined ourselves to a small room now, Okay. right? Which is also vacant most of the days, but yes, maybe once a week, twice a week, I just go and pay a visit to that room. That's it, right? Rest of the team, they are working from home. They are pretty happy. Corona has brought obviously a lot of negativity with it. It has brought a lot of loss of lives, a loss of property, loss of money, right? But if you see the positive thing out of it, people realize the importance of their family, right? People have moved close to their family, right? The people, IT people like us, right, who used to stay in Delhi, who used to stay in Bangalore, maybe outside the country, right? They have a lot of time to spend with the family now. Most of the people have moved back to their natives. Right, right. The parents are happy, the kids are happy, they are home, right? They are interacting with the parents. So that's the only positive thing that I feel that has come out of the current situation. But yes, like you said, that digitalization is the next thing which is there, right? Now you can roam around freely without having a wallet in your pocket. Correct. Right. For if you want to buy something, even the Golgappe wala bhai, he takes the ATM or he takes Google Pay. Right. If you want to fill fuel in your car, you have the digital mode of payment. The phone is everything now, right? Anything and everything that you want to do, your phone is capable of doing that thing. You want to go shopping, don't take your phone. You have forgotten your wallet at home. There's no need to carry a physical driving license, right? There's no need of carrying a physical hard copy RC with you. Okay. Right. So everything is coming to that digital. I mean, this should have come long back, but ना कई बार kickstart चाहिए होता है किसी चीज को. So if you see the positivity out of it, this has acted as a kickstart for the digital era to come into place.
Right. So yesterday we were having a discussion on the PwC survey as well. So in that survey, it is mentioned that 1 out of 10 means like don't ever want to go to office. So means like how, so means like in your organization as well, how people are reacting, they want to do the work from home, and is it increasing the productivity or productivity is the same? What has been changed? What would be your point of view on like this? Yeah, देखो पहले when you used to go to the office, right? If the office timing is from 9 to 6, your office actually started at 8:15 or 7:30. The moment you left the house, around 1-1.5 घंटा you had to travel. Then you went to the office 6 बजे 7 बजे तक your office used to be there. And then you used to come back at 9:30, right? Or 8:30 you can say. So जो दिन का 1-2 घंटा है आपका, that was a waste, right? Even if you are driving your own car, आप गाने वाने सुन लोगे, किसी से फोन पे बात कर लोगे, that's it, right? But that was a waste. Now what happens is if the office starts at 9 a.m. in the morning, people get up at 8:45 और वो अपना फटाफट ब्रश किया और लैपटॉप के सामने बैठ गए, and then they start doing things, right? So you have that 2 hours or 3 hours extra with you. How you utilize that time depends on you, right? आप चाहो तो अपनी नींद पूरी कर लो, that is also good for body, so no harm in doing that as well, right? People are sleeping till 8:45, then फट से उठ के they join the meetings. That is something which they do. Some people have started their cycling, some people have started gymming, some people have started running. So this thing is in turn being good for their body, right? That is first positive thing that you see of the work from home culture, right? Second thing, which like I said in the previous statement also, family. People are getting time to stay and spend time with their families, especially parents, right? So we as IT people, we had to, I mean, there was no other option than to move out to a bigger city, like maybe Delhi, maybe Bombay, Pune, Hyderabad, right? Our parents, they used to feel free and they used to feel safe and they used to feel comfortable in these smaller cities where most of us belong to, right? हमारे पास कोई choice नहीं थी वापस जाने की वहां पे, बिकॉज हमारा ऑफिस चलता था सबका. वो लोग क्या करते थे, parents, right? They used to come for 5 days, 7 days, 10 days at a max, right? So this thing, if you see it as a blessing in disguise, right? People are shifting with their families, they are living with their parents. Parents are also happy. जैसी बेटा है या जो भी फैमिली है सुबह से साथ में है, right? So I see this thing, I mean, just if you see the golden tip of it, I see it in a positive way, right? Whatever the offices we were running, most of the companies have realized that was sort of a waste of money, right? So one thing before I go further in the discussion, whatever statements I am making, right, they are just my own school of thoughts, right? So all the people who are listening to us, some people would agree with the school of thoughts that I am having, तो वो लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनना. कुछ लोग जो अग्री नहीं करते कि यार ही इज नॉट टॉकिंग, ध्यान से सुनना, that when you grow up or whenever you try to start your own business, or like seeing that most of the people here are budding entrepreneurs, right? So you know that what not to do, right, or what not to follow. So both the things are equally important, right, to maintain a balance between what to do and what not to do. दिमाग दोनों चीजें होनी चाहिए आपको. बिल्कुल बिल्कुल. So that was the point number 2, like I said, which was about the family, right? Most of the companies have realized that whatever offices we were having, the big offices, the lavish offices, right, that was sort of a, I would call it as a waste of money, to some extent, right? This might be a debatable topic, right? But they've realized, you see companies like Ernst & Young, you can see companies like Deloitte, the companies like Intel, right? They all have given a circular well in time कि बॉस जनवरी 2022 तक ऑफिस नहीं खुल रहा,
right? Whatever is happening, we are not opening the offices. Right. Productivity, it had dipped when the lockdown started, right? Around a year back, right? Because we were not used to all the team work from home, right? Work from home culture used to be there in IT, right? It was obviously there since long. पहले क्या होता था, आपकी 20 जनों की टीम है तो कोई एक जने ने आज वर्क फ्रॉम होम ले लिया, कोई दो जनों ने कल वर्क फ्रॉम होम ले लिया, एंड सो ऑन. Majority of the people, they used to stay in the office, right? Now when everyone is remote, everyone is working from home, so in the starting it used to be a challenge, right? Most of the people, जैसे मैं बता रहा हूँ, कई लोग अपने नेटिव चले गए तो उनके पेरेंट्स के पास में वहां पे नेट था ही नहीं, बिकॉज पेरेंट्स को इतना यूजेज है नहीं. दे आर हैप्पी विद देयर 2 GB per day or whatever they are getting, right? So the challenge that we faced, I'm sure a lot of other companies would have also faced, कि 2 GB में बंदा इंस्टाग्राम देखेगा, या बंदा अपना कोड कमिट करेगा, या बंदा अपना जूम कॉल पे आएगा. So that used to be a challenge. Then, since it was a lockdown, so the net companies were not also working that efficiently in order to install the net, right? So that was one of the problem that we faced. But Okay. yes, I mean, every problem doesn't last for long, यार. मतलब आप कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल के उसको ठीक कर लेते हो, या everything has to be stable. Everything comes out to be stable. That's what I feel. ओके. एंड सर So, एक चीज पॉइंट ये भी रहा है कि जैसे कुछ कंपनी जैसे शॉप वेंडर्स थे, लाइक दे वर फ्रॉम स्वीट शॉप और समथिंग लाइक दैट, दे कनेक्टेड विद मी. दे मेंशन कि like initially they were not interested in going digital, but somehow they connected with me after the covid. They said कि boss एक अपनी एक छोटी सी ऐप बना दो so that we start doing delivery to the home. So before that they have a very different mindset about IT software companies, and somehow in like we are watching कि IT companies एकदम सब बहुत तेजी से grow हुई हैं आफ्टर कोविड. लाइक प्रोजेक्ट्स भी लोगों के पास बहुत आए हैं, मतलब एक स्मॉल ओनर्स और मिड ओनर्स कंपनीज बहुत डेवलप हुई, उन्होंने काफी फ्रीलांसिंग के लिए वर्क शेयर किया है, या फिर जैसे भी उन्होंने स्मॉल ओनर्स को वर्क दिया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, लाइक दिस इज हैपनिंग? this is of course happening, yeah. मतलब like people, you can see more of the people are still streets now, right? All the markets have opened, all the malls have opened, but on the other end we also see कि इसका repercussion क्या हो रहा है. Close to 1.25 lakh cases आ रहे हैं per day, and so on, right? But the sensible people, I feel they are still staying within the limits of their home, right? Those who are still, most of the people are still afraid of going out. So yes, the business owners, they also realize that भले ही लोग बाहर जा रहे हैं. अच्छा, another benefit of the online deliveries and the online shopping was that the thing used to come to your doorstep, right? तो अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं 10 किलो आटे का पैकेट लेके आ रहा हूँ, earlier I used to lift that bag and then take it to my home, right? The benefit that the people are also seeing is कि यार आप महीने भर की grocery मंगा लो, it is coming straight away to your home. Right? So that is also what something the people have realized. Right. So many of the shopkeepers, they have cut down their margins, right? They have deployed delivery वाले लड़के जो होते हैं, right, in order to enhance their reach, right? So like I said that yes, this is the new normal which is coming up. Right. So, sir, related to that, like the question which was very important for the like young entrepreneurs was there कि एक होता है आज के टाइम में जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं तो we saw कि यार उसको फंडिंग मिल गई, वो सक्सेसफुल हो गया, या स्टार्टअप में न्यूज़ जो होती है हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो यही न्यूज़ की तरफ अट्रैक्शन जाता है. यंग entrepreneurs का ले लें, या फिर लाइक इवन फॉर मी कि मैं भी वहां पे अगर कोई न्यूज़ देखता हूँ तो एक बार तो ध्यान जाता है, अच्छा यार क्या हो गया. बट देयर आर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ कंपनीज लाइक टॉक अबाउट Zerodha, who bootstrap the company और वो बहुत सक्सेसफुल हैं. इवन अभी उन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले निखिल जो उनके सीईओ उन्होंने भी मेंशन किया कि हम नहीं जाएंगे फंडिंग के लिए, कोई किसी को जो करना है कर लो, वी आर प्रॉफिटेबल
हम नहीं जाना चाहते. तो देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ लाइक यू आल्सो बूटस्ट्रैप एवरीथिंग. आपने अपने खुद अपने एक्सपेंस लगा के कंपनी को खड़ा किया, इतना दूसरी कंपनी भी आपने ओपन की. तो व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड लाइक हाउ अ बूटस्ट्रैप कंपनी कैन बी क्रिएटेड एंड लाइक what is the thing which is means like because अभी हमने एक रिसेंटली एक न्यूज और देखी थी कि जो फंडेड कंपनीज हैं देयर वैल्यूएशन तो बहुत हाई है उन लोगों का, बट स्टिल दे आर इन अ वेरी ह्यूज लॉस. सो Correct. although they provide a very high salaries and all, मैं उस पे बिल्कुल means like not saying anything, but still they are not profitable at the end of the day. So what's your view on the bootstrap companies and like how they can grow so that the bigger market capture and then the media should also like take care of the bootstrap company like Zerodha is doing. They are doing it at their own. So how the companies can do the bootstrapping? Okay, so the basic difference between a funded company and a bootstrap company is money. Mhm. करेक्ट. बूटस्ट्रैप कंपनी में आप अपने घर से पैसा लगाते हो, जो भी आपके पास में सेविंग्स है, मे बी अ लाख रुपीज तक, कपल ऑफ लाख रुपीज, राइट. फंडेड कंपनी में यू सो एवरी पेनी काउंट्स, राइट. आप अगर कोई मतलब कॉफी का कप आपको 5 रुपए का पड़ रहा है, तो यू एंश्योर कि यार वो 4 रुपए का कैसे मेरे को पड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स money which is getting infused, right. In a funded company, उतना कोई वरी है नहीं, right. You are getting funds from somewhere. You can have a lavish office, you can have a lavish lifestyle, you can give infinite salary to your employees, right. So in a bootstrap company, for the people who are listening right now, जो कि budding entrepreneurs and like you said, right, the mantra is to start early, right. What I mean to say is, on entrepreneurship, you also started your own company, you also bootstrapped your own company, right. It is a very difficult way, it's a very difficult passage, right. Every day there are new challenges with respect to money, with respect to resources, with respect to clients, with respect to operations, deliveries, right. You talk about IT companies, you talk about non-IT companies. I'm talking about a statement in general, right. Mhm. So every day is a new challenge. The uh, the base thing that you need to be, that you need to ensure, right, is that you start early. Even if you have not yet started your company, right, give it a thought. पीछे पीछे अपना दिमाग में बनाते रहे कि यार मुझे क्या करना है या मैं कैसे करूंगा. There are a lot of problems which are there in the country right now, Mhm. right. तो जैसे जीरोधा ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़ के उसको रिजॉल्व करने के लिए दे वर्क towards it, right. Paytm also picked up a problem way, I mean, long back, and they also started working towards it, right. So the key is think what needs to be done, right. Then see how it needs to be done. उस आइडिया को वैलिडेट करें, है ना. उस आइडिया को फिर धीरे धीरे उसको ग्रो करें before you get out of the college or before you leave your job, right. Although it's a chicken and egg situation कि यार मैं जॉब छोड़ूंगा तब कंपनी चलेगी, या कई लोग कहते हैं जी कंपनी चलेगी तब मैं मेरी जॉब छोड़ूंगा. So even if you are in a job, try to give it a thought. If you are a developer, right, then you can sit with your friends जो कि consultants हैं, जो कि industry में काम कर रहे हैं, उनके साथ में you can start sharing a bit of the ideas, right. And if you are a developer, that is a good thing that you can start developing the prototype also. You can start developing something, you can launch it at a very basic stage. Problems बहुत सारी हैं, मतलब आप you just need to pinpoint the problems. कोई छोटे शहर में रहता है, वहाँ पे अभी भी मेडिसिन की डिलीवरी नहीं है, राइट. देयर आर प्लेसेस जहाँ पे अभी ई कॉमर्स इतना ज्यादा नहीं है, राइट. तो क्या हम वहाँ पे कुछ एड्रेस किया जा सकता है. देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है प्रॉपर, right. People who want to go to the hospitals, they need to travel by their two-wheelers, for example, right. Just taking an hypothetical example. So can you do something in order to benefit them, right. तो उस तरह का कोई एक niche market पकड़ के you start working towards that, right. How, what problem
are you addressing in the market, right? उससे किस किस को बेनिफिट होगा, क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे कैसे बेनिफिट होगा, एंड ऑल्सो आप उससे कैसे ग्रो करोगे एज अ कंपनी. So you need to start early. That's what I mean, my mantra is that if the people who have not yet given a thought, right, उसको बैठ करके थोड़ा सा सोचें कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं. बहुत सारी हैं प्रॉब्लम्स. अगर आप देखने बैठेंगे, अगर आप कहीं मतलब थोड़ा सा थॉट देंगे इसको, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स. आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, right, about the I'm talking about the medical industry right now, which is also, you should say, on the boom. I mean, a lot of people are getting diverted towards it. आपके कोई घर में पेशेंट है जो कि बीमार है, जिनको बहुत हाई फीवर है या जिनको कोई और तकलीफ है, आप किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, राइट, और डॉक्टर के आपने टोकन नंबर तो ले लिया, बट द वेटिंग टाइम इज 1.5 hours, राइट. तो आप तो एज अ अटेंडेंट वहां पे मतलब बैठ जाओगे, बट जो ये है पेशेंट है, it would be very difficult for them to sit over there for such a long time. So can you do something to resolve that, right? गांव में मेडिसिन्स नहीं जा रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं. गांव वगैरह में या छोटे शहरों में अच्छे ब्लड टेस्ट वाले पैथ लैब्स नहीं हैं, right? In the cities we have a number of path labs which are good, which are renowned, right? So the results that you get out of it is, you can say, close to accurate, right? आप किसी छोटे शहर में जाकर के आपने ब्लड टेस्ट कराया, ऑथेंटिसिटी उसके रिजल्ट की क्या है, right? So there are a lot of things, there are a lot of problems that the person can think about, right? Hassles आएंगे, problems obviously आएंगी, right? एंटरप्रेन्योरशिप में परसिवरेंस जो है, एंड्योरेंस है आपका, वो रोज चेक होता है. रोज लगता है यार कहाँ घुस गए, इससे तो जॉब में ठीक थे. आई एम श्योर आप भी रियलाइज करोगे इस चीज को. व्हेन वी यूज्ड टू बी देयर इन अ जॉब, हर 30th को हमारे पास में जो भी हमारा पैकेज था, दैट अमाउंट यूज्ड टू कम टू अस, राइट. उससे आप अपने पूरे मंथ की जो हैसल है उसको भूल जाते थे कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, रगड़ रहे हैं मेरे को, doesn't matter, but at the end of the month I am getting whatever I have been promised, right? When you start something of your own, you don't know कि यार पैसा आएगा कब आएगा, आज आएगा नहीं आएगा. So and since the company is bootstrapped, जो आपके पास में है आपको स्टार्टिंग में लगाना होता है, right? Even if you are a services company, even if you are a product company, सर्विसेज कंपनी में भी आपके पास में स्टार्टिंग में छोटे क्लाइंट्स आएंगे, है ना, कि जी मेरे को वेबसाइट बना दो, 10,000 रुपए में वेबसाइट बना दो, 5,000 रुपए में वेबसाइट बना दो, राइट. आप उस टाइम पे इन ऑर्डर टू गेट क्लाइंट्स, इन ऑर्डर टू गेट द मनी फ्लोइंग, आप वो भी बना देते हो, 5,000 रुपए में वेबसाइट्स बना के दे रहे हो, 10,000 रुपए में वेबसाइट. उससे आप कहते हो यार कम से कम डेवलपर की कॉस्ट तो आएगी, राइट. हम ये मिसमैच कर लेते हैं कैलकुलेशन कि डेवलपर की तो कॉस्ट आ रही है, जो हिडन कॉस्ट्स हैं, जैसे हमारा ऑफिस का रेंट था, है मतलब रादर, राइट, जो हमारी सेल्स की टीम है, जो कि सेल्स ला रही है, उसकी भी कॉस्ट निकालनी है, ऑफिस बॉय है, लाइट के खर्चे हैं, इंटरनेट के खर्चे हैं, राइट. तो यू डू दीज थिंग्स इन द स्टार्टिंग, राइट. आप ये सब काम करते हो स्टार्टिंग में. द मनी मैनेजमेंट is the key. Like I said, that the difference between a bootstrap company and a funded company is the money, right? तो अगर आप सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो यू नीड टू नो कि यार मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. स्टार्टिंग में आप हर तरह के काम करते हो, यू रीच टू अ पोजीशन wherein you have to decide कि यार this is what I want to portray myself in the market, right? Even if there are losses, right, even if things are not working fine, मैं इस चीज से नीचे जाऊंगा ही नहीं, राइट. देयर आर कंपनीज जो कि पूरा जो मतलब बिजनेस एनालिसिस है, टेक आर्किटेक्चर है, राइट, फिर डिजाइन है, यूआई के बंदे हैं, यूएक्स के बंदे हैं, जो टेस्टिंग टीम है, राइट. द टेस्टिंग टीम also is a very experienced team which most of the companies have, not most of the companies, which some of the companies have. So all of these things, they come with a cost,
राइट. तो कंपनी से कि यार मेरे को ना इस टिकट साइज के नीचे जाना ही नहीं है, राइट. मैं अपने काम को डिग्रेड करूंगा ही नहीं. This is the quality, this is the specific quality that I will maintain, right? Even if I get something, if I get good clients, okay. If I don't get good clients, I will do something of my own in order to meet those expenses, right? Expenses आज नहीं आएंगे, expenses कल नहीं आएंगे, but maybe साल भर बाद में, 6 महीने बाद में आपको जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टीम, राइट. आप कहते हो जी मेरे पास में ये पूरी टीम है, बट अभी काम नहीं है, राइट. अपना कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो पीछे, राइट. उसको जब आपके पास में एक्चुअल काम आ रहा है, जब आपके पास में पेइंग काम आ रहा है, तो उसको आपने बैक सीट पे डाल दिया, राइट. व्हेन यू डोंट हैव एनी वर्क, आई मीन दैट्स स्पेसिफिक कंपनी, व्हेन इट डजंट हैव एनी वर्क, तो आपने वापस प्रोडक्ट पे काम कराना स्टार्ट कर दिया. सो द प्रोडक्ट विल नॉट पे यू राइट अवे, बट व्हेनेवर दैट प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, मे बी 6 months डाउन द लाइन, मे बी 1 year डाउन द लाइन, तब आपको उससे रिकरिंग बिजनेस आने लगेगा. बिल्कुल करेक्ट. सो दैट इज द थिंग यार. टू स्टार्ट विद इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मेंटेन देयर नीश, राइट. बट स्लोली एंड स्टडीली दे विल हैव टू मेक देयर नीश, के यार ये ही मेरे को काम करना है. वरना तो फिर ऐसी कंपनीज बहुत हैं जो कि कुछ भी काम करने को तैयार हो रही हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन योर कंपनी और यू और द अदर कंपनीज इन द मार्केट? Yeah. जैसे आपने जीरोधा का एग्जांपल लिया, राइट. सो इधर यू कैन ब्रिंग आउट अ प्रोडक्ट लाइक जीरोधा, राइट, और एनी अदर प्रोडक्ट. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंपनीज को हम अब तक जानते ही नहीं है. मैनी बी टू बी प्रोडक्ट्स आर देयर, मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर जिसको हम जानते नहीं है. बट अभी वो कंपनीज क्या कर रही हैं, अभी वो रेवेन्यू गेन कर रही हैं धीरे धीरे, राइट. सिंस दे आर bootstrapped, right. Once they have a specific revenue, then they would start their branding, right. So this is something that I feel, right, कि अपना niche बना के रखो market में, and then work slowly and steadily towards it. इसी में सर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा. 2018 में जब मैं आपसे मिला था, यू गाइडेड मी ऑन वन पॉइंट कि जब हम बिल्कुल स्मॉल लेवल पे स्टार्ट ही कर रहे थे, मतलब एक गाड़ी आगे बढ़ी थी, एंड यू प्रोवाइडेड अस अपॉर्चुनिटी एज वेल. वी आर वेरी थैंकफुल. अभी भी हम कनेक्शन में हैं एट दैट टाइम. So you said to me one thing कि गौरव, it's 12 hours team is working at one end, और एक टाइम पे you have to make sure कि तुम्हारे पास एक्सपेंस भी हो. 3 से 6 महीने का खर्चा जरूर रख लियो, ये टाइम बिजनेस में आ सकता है. यू ऑल्सो सेड कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास हमेशा एक बार डेली चेक कर लिया, कब कौन सा मतलब एक चेकिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की. सो ये टिप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही है, कभी ना कभी मेरे काम आ भी गई हैं ऑल्सो. सो व्हेन यू सेड कि है, तो मैंने भी साइड बाय साइड उस टाइम पे, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि सैलरी का इशू ना है किसी के साथ, तो हमने ये मेक श्योर किया कि लाइक विद योर एडवाइस व्हाट आई डिड वाज कि मैं कुछ कंपनीज थी जिनको बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए होते थे. So being as an entrepreneur, it's not bad if I was doing something at the end of the day, 3-4 hours I can provide something of value and I'm earning. At the end of the day, you're putting the money same into the business. So sometimes people are shy. मैं जब अभी कई लोगों से बात करता हूँ, तो मैंने बोला मैं यार कंपनी चलाने के लिए, like you have to do this thing. You have to make sure कि expense जो है वो मैट कर रहे हो. तो चाहे फाउंडर हो, कुछ भी जो भी लीडरशिप में, they have to take the bold step for to survive bootstrap company especially. Right. At the end of the day, it is your show, right. You have to run the show, correct. उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, मतलब you know कि यार अगर मैं फेल हुआ तो this company is gonna come down, right. Whatever you want to do, branding, marketing, अगर शर्म कर ली, right, I am talking in a positive way, अगर शर्म कर ली तो फिर ठीक है यार, just be like any other normal company. मैं अगर सेल्स का एग्जांपल दूं, तो जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, आई एम श्योर बहुत लोग जुड़े हुए हैं उनसे, राइट. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज. वो आप चाहे उनके दोस्त हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे रियल भाई हो, चाहे आप रियल बहन हो, चाहे आप फादर हो, मदर हो, वो अपनी प्रोडक्ट पिच करना छोड़ते ही नहीं है, करेक्ट. दैट इज व्हाट दे आर टॉट, राइट. कि भाई अगर आपने शर्म कर ली कि नहीं यार ये तो मेरा भाई है, इसको मैं कैसे ये पिच करूंगा कि आप इतना पैसा लगाओ और फिर 2-3 चेन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो ना उसकी चेन कभी बनेगी,
राइट, ना उसकी चेन बनेगी, ना उसको कभी वो प्रॉफिट्स आएंगे जो कि कहीं पे प्रॉमिस हुए हैं, राइट। तो सेम गोज विद दी कंपनीज ऑल्सो, और सो सेम गोज विद दी एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। अगर आपने शर्म कर ली तो ब्रांडिंग जो आपको करनी है अपनी कंपनी की, राइट, जिसको ना हिंदी में कहते हैं ना कि छा जाओ बस चारों तरफ, राइट। होली की विश हो उसमें कंपनी की ब्रांडिंग हो, दिवाली की विश हो उसमें उसमें कंपनी की ब्रांडिंग हो, एनीवन एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू यू, राइट, ही और शी शुड नो कि यार आईटी का मतलब गौरव, गौरव इज रनिंग इज कंपनी नेम्ड सीटीडी वर्ल्ड, आईटी का कुछ भी काम होता है तो मेरे को गौरव से ही कराना है, राइट। कहीं पे शर्म मत करो ब्रांडिंग करने में। ऐसा भी नहीं है कि किसी को आप बिल्कुल पोक कर करके इतना कर दो कि लोग आपके कॉल्स ब्लॉक करने स्टार्ट कर दें, राइट, बट एक लिमिट के अंदर यू नीड टू डू योर ब्रांडिंग एवरीवेयर, दैट डजंट नीड मनी। फेसबुक पे अपना पेज पेज बनाओ, लोगों को पेज का लिंक दो, जो आपके स्कूल के ग्रुप्स होंगे, कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, पड़ोसियों के ग्रुप्स होंगे, रिलेटिव्स के ग्रुप्स होंगे, राइट। मेक अ पेज ऑन फेसबुक, मेक अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, मेक अ गूगल बिजनेस अकाउंट, दैट डजंट कॉस्ट मनी, राइट। सो बट उससे क्या होगा, आप बार बार ना यू आर गेटिंग अ विजिबिलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके प्रोडक्ट्स हम कभी यूज करते ही नहीं है, राइट, बट कभी कोई एक्ट्रेस किसी की ब्रांड एम्बेसडर है, कभी कोई बहुत ए ग्रेड का एक्टर किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, तो देयर होल आइडिया इज टू recall that brand in our minds, even if you are a target segment, the target audience or not, but you at least know about that brand, राइट। right। तो कल को अगर मैं गौरव के हाथ में कोई एक्स फोन भी देख रहा हूँ तो आई वुड फील कि हाँ यार ये फोन का नाम तो मैंने सुना है, दैट सीम्स अ गुड ब्रांड, क्योंकि इसके साथ में वो एक्स एक्ट्रेस जुड़ी हुई हैं, right? तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं। भाई हमको कोई जरूरत थोड़ी है कोई मतलब मे बी से 5,000 रुपए के फोन के ब्रांड को जानने की, या 10,000 के फोन को जानने की, फॉर द पीपल हु आर यूजिंग आईफोन्स, हु आर यूजिंग टॉप एंड नोट सीरीज एंड स्टफ, राइट, बट दे स्टिल नो अबाउट द ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड रिकॉल ये कंपनी कराती रहती है बार बार। यू आर समवन एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी, आप अभी किसी एक्स एक्ट्रेस को हायर नहीं कर सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो उसके दूसरे दूसरे तरीके हैं। व्हाट्सएप पे लोगों को पिंग भेजते रहो, अपनी जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है वो आप वैसा लगाते रहो, फेसबुक के ऊपर अपडेट डालते रहो, सो दैट पीपल नो अबाउट द कंपनी। कई बार ऐसा होता है, मतलब माय कंपनी इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, आई हैवंट इवन स्टार्टेड येट, आई मीन द जर्नी, अभी 4 5 6 6 साल हुए हैं, छोटा मोटा कुछ काम किया है। कई बार किसी क्लाइंट का फोन आता है कि अरे सर वो तो आपका ही बोलने का। नहीं नहीं, इट्स अ फैक्ट यार, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई ही नहीं है। कई बार किसी क्लाइंट का फोन आता है, अरे यार मैं इनके साथ बैठा हूँ और मतलब ये भी आपके क्लाइंट है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा फीडबैक, मतलब तो इन देयर ओन डिस्कशन दैट मस्ट हैव हैपेंड, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा नाम आया हो, कहीं ना कहीं कंपनी का नाम आया हो, दूसरे ने कहा अरे हाँ यार ये तो मैंने नाम सुना है, राइट। अब वो कहाँ सुना है, कैसे सुना है, हो सकता है कोई मेरा क्लाइंट हो सकता है कोई मेरा फ्रेंड हो, राइट, जिसको लगातार मेरी विशेष जा रही हैं या लगातार मेरे व्हाट्सएप्स जा रहे हैं, राइट राइट। सो दे आर एबल टू रिकॉल द ब्रांड। सो आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे जिससे आपका ब्रांड लोग जाने बिल्कुल ना। यूज मिनिमम मनी, यूज जीरो मनी, यूज मिनिमम मनी, सो दैट पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कराते हैं जो सोसाइटीज के बाहर बैनर्स लगते हैं, है ना, जिनके सोसाइटी के नाम होते हैं, सेक्टर 22 नोएडा, सेक्टर 15 नोएडा, सेक्टर ये सेक्टर वो, वहां पे लोग अपनी ब्रांडिंग कराते हैं, है ना। कई एसी के ब्रांड्स होते हैं, कई नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी ब्रांडिंग होती है। तो इफ यू सी दोज बोर्ड्स, राइट, उस पे आधे पे वो ब्रांड का नाम होता है, आधे पे उस सोसाइटी का एड्रेस या सोसाइटी का नाम होता है, राइट। सो दैट डजंट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। आजकल लोग ऑटो रिक्शा के पीछे ब्रांडिंग कराते हैं, से आपकी विजिबिलिटी देयर विद अ लिमिटेड geographical area, but still the people near to you are sort of recalling your brand, right? There is a good friend of mine who is running a coaching center in Noida, right? उसने इतनी ज्यादा ब्रांडिंग करा रखी है सब ऑटोज के पीछे, और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार ये तो अपने बंदे की ब्रांडिंग है, देखो मतलब उसका नाम इतना ज्यादा घूम रहा है,
all my teammates, all my partners, all my colleagues, all my relatives, they know यार ये जो ब्रांड है ना ये इसके फ्रेंड का ब्रांड है, तो दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द ब्रांड। तो वो भी अपने दोस्त को मिलते हैं, कहते हैं यार ये जो ब्रांड दिख रहा है, अरे ये मेरे भैया के फ्रेंड का ब्रांड है, ये वो है, ये ऐसा है, राइट। दैट वुडंट हैव कॉस्टेड हिम अ लॉट, राइट, बट कहीं ना कहीं पे ब्रांडिंग हो रही है। So that thing the companies also need to do, apart from making a good product, right? Apart from developing good websites, apart from developing good apps, अपने आप को ब्रांड ही करना है, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं यार जो कि मैं चाहता हूँ, मतलब मैं खुद भी करता हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ। मैंने जैसे आप बता रहे हो कि आपके साथ भी शेयर करी थी काफी सारी चीजें। सो ये आपको ना मतलब देखो, फायर फाइटिंग मोड में आप क्रिएटिव सोच नहीं सकते। यू कैन ओनली बी क्रिएटिव व्हेन यू आर नॉट इन अ फायर फाइटिंग मोड। आपके घर के खर्चे महीने के 40,000 रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। आप हमेशा उसी टेंशन में हो गया यार वो 40,000 रुपए कैसे आएंगे, मेरे को गाड़ी की EMI भी देनी है, घर की भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आप ना उसी चक्कर में यू विल बी देयर थ्रू आउट द मंथ, right? By 22nd or 25th of every month you will be super tensed। अरे यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये करूं, वो करूं। ऐसे में कोई अगर कोई आइडिया लेके भी आता है आपके पास में, आप कहोगे बॉस लेट मी पार्क दी आइडिया, अभी तो मेरे को घर चलाने में दिक्कत हो रही है, सो लेट मी डू समथिंग जिससे पहले घर चले, फिर कुछ काम करेंगे, फिर कुछ दिखी जाएगी बात, राइट। सो दैट once you come out of the firefighting mode, only then you can be creative, right? So the first thing that you need to do is to try to come out of the firefighting mode। तो like you said that as a entrepreneur आप कई जगह जाके कंसल्टिंग दे रहे हो, राइट। अब तो खैर कॉलेजेस वगैरह बंद है, कई सारे कॉलेजेस पहले एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया करते थे, भी कईयों में गया हूँ, आप भी आई एम श्योर गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं। दे गिव यू सम स्पेसिफिक मनी विच इज नॉट दैट ह्यूज, बट स्टिल ठीक है, मतलब कुछ आ रहा है तो डजंट मैटर, राइट। ना आपकी ना मेरी 30th को सैलरी नहीं आ रही है, दैट इज फॉर श्योर। एक लेवल के बाद में हम लोग निकालने लगते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू बूटस्ट्रैप द कंपनी, राइट, हम लोग की सैलरी नहीं आती है, किसी की साल भर तक नहीं आती है, कोई 1.5 साल तक नहीं आती है। आती भी है तो आप वापस से इन्फ्यूज कर देते हो कंपनी में कि जी मेरे को मैकबुक्स खरीदने हैं, जो iOS डेवलपर है उसको मैकबुक चाहिए, अब कंपनी में प्रिंटर चाहिए, राइट। सो स्लोली एंड स्टडीली यू बाय अ प्रिंटर। अभी तक आप बाहर से प्रिंट्स निकलवा रहे थे, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर कॉफी मशीन अच्छी नहीं है कंपनी में, तो आप इसकी कैफे कॉफी डे की कॉफी मशीन खरीद के लाते हो, राइट। तो अगर प्रॉफिट्स बंद, क्योंकि यू ट्रीट द कंपनी एज योर बेबी, राइट, तो वॉट एवर मनी, कई बार ऐसा होता है कि यार इन्फ्यूज मतलब कंपनी पैसे निकालने का मौका भी होता है, आप कहते हो नहीं नहीं छोड़ो यार अपन बाद में निकाल लेंगे, मैं अभी 10,000 रुपए निकाल लेता हूँ, बाकी पैसे से मैं कॉफी मशीन खरीद लूंगा, या बाकी पैसे से मैं कुछ एक्स चीज खरीद लूंगा, राइट। सो like Mr. Warren Buffett says, never put all your eggs in a single basket। Number one. Number two, you should have multiple source of income, right, which is very much relevant in the current scenario, है ना। जो लोग किसी एक ही इंडस्ट्री को पकड़ के चल रहे थे, राइट, अब किसको क्या पता यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कल को। आज तो IT इंडस्ट्रीज दे आर बूमिंग, दे आर डूइंग गुड, है ना, मशीन लर्निंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। कल को यू नेवर नो, या कुछ ऐसा बग आ गया जिससे सारे कंप्यूटर्स, एनीथिंग कैन हैपन। कोरोना हैज टॉट अस दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, है ना। पूरा वर्ल्ड घर से बाहर निकलना बंद हो गया, कभी आपने सोचा था फ्लाइट्स ही बंद हो गई, राइट, रोड्स बिल्कुल क्लीन हो गई, राइट। सो इफ यू आर स्टक टुवर्ड्स अ सिंगल थिंग, यू नेवर नो यार कब क्या हो जाए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। So once you build a base, then you can also think towards another way of getting money, right। So such tips and tricks are there for the beginners, I can say, right। So a very wonderful tip. Vijeta has also shared a message, very nice tip, so audience loved your tip। So the third question, sir, which we want to know is like, we were just talking about like machine learning, right?
तो अभी क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक यंग एंटरप्रेन्योर्स कह लूँ या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स में भी रहता है कि यार पाइथन सीख लेते हैं, राइट, पाइथन सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, करियर इसका है। ऑल तो अगर हम लिंक्डइन पे भी आज भी हम डालें मशीन लर्निंग या पाइथन डेवलपर, तो जो रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट को कंपेयर करें अगर हम पीएचपी डेवलपर डाल के या एनी अदर फील्ड, तो हमें दिखेगा कि हाँ अभी सेगमेंट कम है, अभी सेगमेंट बिल्कुल रिजल्ट कम दिखेगा। लिंक्डइन में भी अभी टॉप रिजल्ट लोकेशन के हिसाब से कम आएंगे, बट तो वही है कि जहां पे अभी लग रहा है कि मशीन लर्निंग इज बूमिंग, सो हाउ मींस लाइक यू आर थिंकिंग एज, बिकॉज प्रोजेक्ट्स में तो यूज हो रहा है एआई, नो डाउट, मैनी प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेशन मोड पे आ गया और बहुत टाइम भी सेव हो रहा है, बहुत मनी भी सेव हो रहा है ऑटोमेशन होने से। सो व्हाट इज द मींस लाइक एग्जैक्ट इम्पैक्ट व्हिच इज you have faced right now with a case study, if you can explain? Yeah, देखो, I'll try to answer this question in a different way, right? Okay. You talked about Python, right? We talked about AI, Mhm. machine learning. Mhm. Yes, they are booming, right? Mhm. uh, आगे चलने वाले जमाने में इसी का बोलबाला होने वाला है, जो कि हम आज प्रिज्यूम कर रहे हैं, Right. right? What happens, so we don't know, but yes, as per the current trends, these things are gonna rule the market, right? ऑनलाइन चलान्स हैं, अब हमारे पास में चलान्स आ रहे हैं ऑनलाइन, मतलब अब कोई पुलिस वाला नहीं है, राइट? सो यस, दीज थिंग्स आर देयर इन द मार्केट, बट whatever language you are comfortable in as a core technical person, Mhm. right? Whatever language you are comfortable in, whatever logics you are comfortable in, right? You can stick to that particular language, right? And you can make something meaningful out of that particular thing also. What I mean to say is the whole world is running towards AI, machine learning है जी, AI है, ऐसा है, वैसा है, but what about the things? जैसे आप कह रहे हो भी पाइथन के बंदे नहीं है, या पाइथन में लोग नहीं ज्यादा जाना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स पाइथन और सच लैंग्वेजेस, सॉरी, पीएचपी में बंदे नहीं जाना चाह रहे हैं ज्यादा, राइट? Mhm. पीएचपी सीख करके भी आप इतनी सारी चीजें, ऐसी चीजें बना सकते हो जो कि आपके मार्केट में नहीं है, राइट? उसको बना करके यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग, राइट? पाइथन सीखना, एआई, मशीन लर्निंग, इनके बारे में सीख सकते हो आप लेटर ऑन इन दी लाइफ, right? In the later stages you can learn those things. आप अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई कर सकते हो in that particular field also, right? Right. Right. But you need to give it a start, right? PHP पकड़ के भी चल लो, PHP पे कोई आप ऐसा नीश प्रोडक्ट ले लो कि यार ऐसा चीज अभी नहीं है मार्केट में, हम इसको लॉन्च करते हैं, चलो, राइट? तो ठीक है, उसमें बात पीछे पीछे के जब है, आप फिर एआई डाल लो, उसमें आप पीछे पीछे मशीन लर्निंग डाल लो, उसमें आप एनालिटिक्स डाल लो पीछे पीछे, राइट? बट स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट एटलीस्ट स्टार्ट. सो इवन इफ आपको पाइथन समझ नहीं आ रही है, आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहे हैं, पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आ रही है, डजंट मैटर, जो आपको आता है उसके ऊपर आप स्टार्ट करो काम. रुक गए तो फिर रुक गए, दैट्स इट. Right. वी आई लर्न अ लॉट फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? मूवीज देख लो, वेब सीरीज देख लो, बच्चे देख लो, किसी से भी. अभी रिसेंटली आई वॉच्ड एक वेब सीरीज है, आई फॉरगॉट द नेम, टीवीएफ की आई है, विच इज अबाउट आईएएस एस्पिरेंट्स. Mhm. अभी एक ही एपिसोड आया है उसका, राइट? तो उसमें देयर इज अ वेरी गुड सेइंग बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स. कहता है यार, यहाँ पे ना कछुए की चाल से चलना पड़ता है, Mhm. राइट? आईएएस में आप देखो तो बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, कईयों का फाइनल में जाके होता है, कईयों का फाइनल अटेम्प्ट में भी नहीं होता, तो दे सी कि यार मेरे तो 6 साल वेस्ट हो गए एकदम से, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, राइट? ऑल माय फ्रेंड्स हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस नाउ, Mhm. आई हैवंट डन एनीथिंग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच नाउ, राइट? तो वो दैट कैरेक्टर वाज ट्राइंग टू टेल द पीपल के यार यहाँ पे ना धीरे धीरे चलना चलना पड़ता है, कछुए की स्पीड से चलो, बट एटलीस्ट चलो, Right. राइट? इफ यू आर अ जिम फ्रीक, आई नो, राइट? तो मैंने भी छोटा मोटा अभी जैसे साइकिलिंग वाइकलिंग टाइप Mhm. स्टार्ट किया लॉकडाउन में. Uh-huh. आई यूज टू रन, पहले कुछ कुछ मैराथन भाग लिया, कुछ भाग ली. Mhm. तो द थिंग इज, बाय द टाइम यू आर रनिंग, राइट, बाय द टाइम यू आर साइकिलिंग, इट इज ओके. आप अगर थक भी गए तो साइकिल का पेस धीरे कर लो, आप धीरे धीरे जॉग करना चालू कर लो, राइट?
बट इफ यू स्टॉप, उसके बाद स्टार्ट करने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. Correct. So that's what I mean to say is that whatever you want to do, whatever you are doing in whichever language doesn't matter. भाई फेसबुक भी जब चालू हुआ था किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बना था, राइट. जकरबर्ग कहता कि नहीं नहीं यार, मुझे तो भाई साहब इसी लैंग्वेज में बनाना है, मुझे तो जी पाइथन में बनाना है या सी में बनाना है या एनी स्पेसिफिक उसमें बनाना है. तो देन ही वुड हैव वेटेड कि यार मेरे को सी सीखनी है या मेरे बंदों को सी सिखानी है, फिर बनाना है, फिर ये काम करना है. उसने कहा ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट लेके आगे चालू करते हैं. अभी मान लो सी लैंग्वेज नहीं आती मेरे को, सी का फ्यूचर है, तो मैं उसको बाद में सी में कन्वर्ट कर लूंगा धीरे धीरे. फिर मान लो कोई पीएचपी नाम की लैंग्वेज आएगी किसी जमाने में, जाके मैं पीएचपी में कन्वर्ट कर लूंगा. फिर कोई एनालिटिक्स लगनी चालू होंगी तो मैं एनालिटिक्स डाल लूंगा बीच में, राइट. तो द एडवाइस टू द पीपल इज जस्ट शूट. स्टार्ट करो, स्मॉल स्टेप्स लो, कीप गोइंग, राइट. स्मॉल स्टेप्स लो, करेक्ट. वेट करना कि जी मैं लूंगा मैं साल बाद में स्टेप लूंगा, उसकी जगह ट्राई टेक स्मॉल स्टेप्स. यू विल फेल, राइट. परसिवरेंस इज द की. आप फेल हो गए, आप 19 बार 20 बार 22 बार 25 बार फेल हो गए, बट उससे कुछ सीख करके आप 26 टाइम यू विल सक्सीड. कुछ भी लॉन्च करो यार, कोई भी वेबसाइट किसी भी आके डालो, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसको धीरे धीरे ग्रो करो. राइट. एंड सर एक चीज है कि जो यंग ऑडियंस आती है, मींस लाइक एवरी टाइम दे केम, मतलब मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ वो इतने सही थॉट प्रोसेस लेके आते हैं. मींस दिस यंगर जनरेशन, मैं हमेशा वो हो जाता हूँ कि मतलब इट्स एवरी टाइम व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है उनसे. मींस कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस ले आएंगे, प्रोडक्ट में ये बता देंगे या एवरी टाइम. सो यस, इट्स वेरी गुड थिंग यू सेड कि वो देयर इज a big amount of generation which is coming, जो कि बहुत एक्टिव है, बहुत सब कुछ है उनके पास, डिजिटलाइजेशन का बहुत अच्छे टूल्स सजेशन दे कैन डू. बट हाँ, इस स्मॉल स्टार्ट ले सकते हैं वो, सो दैट वो एक मेंटल माइंडसेट क्रिएट होगा वो लॉन्ग टाइम पे ही होता है, बिकॉज देयर वुड बी डेफिनेटली अ फेलियर्स इन अ बूटस्ट्रैप कंपनी होता है. बेसिकली ना उससे क्या होगा, इफ यू टेक स्मॉल स्टेप्स, तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस जो आपको कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता. राइट. वो आप ना रियल लाइफ में ही सीखते हो. बिल्कुल. राइट. सो वंस यू स्टार्ट अ कंपनी, देन यू फेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कह रहा है ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तब उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. राइट. वीज आप अगर अभी स्टूडेंट हो, राइट, या अभी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ लॉन्च करो मार्केट में, राइट. थोड़ी सी स्टडी करने के बाद में, आई एम नॉट सेइंग कि जी कल को जाके कुछ भी बना दो, कुछ भी लॉन्च कर लो. कुछ स्टडी करने के बाद में यू लॉन्च समथिंग, you will feel a lot of problems which are coming up, right. How to cope up with those problems आप इसी जर्नी में सीख लोगे, right. जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइसेस हैं, राइट. पेट्रोल प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट हो रही है ना. कई सारी एपीआईज नेट पे हैं जिनसे आप पेट्रोल प्राइसेस आपको हर सिटी की मिल सकती है. राइट. मेक अ स्मॉल वेबसाइट, राइट. उसमें गूगल एडवर्ड्स वगैरह सारा कुछ चीजें लगा करके मेक अ वेरी स्मॉल वेबसाइट. उसमें आप अपनी सिटी चूज करो, राइट. या आप जियो लोकेशन से वो ऑटोमेटिकली आपकी सिटी पिक कर लेगा, है ना. उसके बाद में उस सिटी की पेट्रोल प्राइस दिख गई, करंट प्राइस, राइट. अ वेरी स्मॉल वेबसाइट, इट विल नॉट टेक मोर देन अ डे टू मेक अ दिस सॉर्ट ऑफ वेबसाइट. लॉन्च इट इन द मार्केट. जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां से भी हिट्स आ रहे हैं, जैसे भी हिट्स आ रहे हैं, वो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी वहां से, है ना. गूगल एडवर्ड्स कैसे लगाते हैं, किसी से एपीआई कैसे लेते हैं, पेड एपीआई क्या होती है, फ्री एपीआई क्या होती है, पेड एपीआई का पॉजिटिव के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, फ्री एपीआई के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, राइट. कोई इमेज अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या वो इमेज कॉपीराइट तो नहीं है, राइट. उससे आप कॉपीराइट लॉस के बारे में पढ़ लोगे, कॉपीराइट क्या होती है, कैसे होती है, राइट. गूगल एड्स यूज कर रहे हो, कई बार लोग क्या करते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, राइट, अननोइंगली व्हाट दे डू इज के बार बार अपनी वेबसाइट खोल के देखते हैं. उससे क्या होता है, गूगल वाला देख लेता है कि भाई ये तो बार बार वेबसाइट खोल रहा है अपनी, तो वो आपका एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक मार देता है,
कि यार ये तो सेम लोकेशन से बार बार खुल रही है, बार बार हिट्स आ रहे हैं, तो देयर इज समथिंग फिशी दैट इज हैपनिंग, राइट? तो यू लर्न कि यार ऐसा करना नहीं है, राइट? ऐसा करना है तो इसका आपको क्या क्या तोड़ है, गूगल में क्या ऑप्शन है. सो बिल्कुल. दीज थिंग्स यू स्टार्ट लर्निंग, राइट? मेक समथिंग एल्स, मेक अ स्मॉल वेब पेज जिससे कुछ आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिससे कुछ आप डेटा का ग्राफ बना के दिखा रहे हो. उससे आपको प्रोज मालूम चलेंगे, उसके कॉन्स मालूम चलेंगे. किसी ने आपकी वेबसाइट हैक हैक कर ली कभी, राइट? आपने ये छोटा सा वेबसाइट बनाया, किसी ने हैक हैक कर लिया फॉर एग्जांपल, तो हैक प्रूफ कैसे बनाना है, राइट. फायरवॉल्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स कैसे लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं. स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एडिंग वैल्यू टू इट, राइट? आपने जो ये छोटी सी मैंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया, आपने सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस दिखा रहे हो अभी, उसमें कुछ और भी दिखाना स्टार्ट कर दो, राइट? देन कोई थर्ड चीज ऐड कर दो, देन उसमें एक फॉर्म फॉर्म बना लो, फॉर्म बना के जो जो भी रजिस्टर करेगा उसको कोई कोई मान लो प्राइस मिल जाएगा, उससे आपके हिट्स आएंगे. तो दैट वेज आई थिंक यू कैन ग्रो टुवर्ड्स समथिंग बिग. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको, ये जो नेट प्रैक्टिस आप कर रहे हो, द स्मॉल थिंग्स यू आर मेकिंग एंड लॉन्चिंग इट इन बहुत सही बात मार्केट, है. राइट. नेट प्रैक्टिस में अगर आपको मालूम चल गया कि मैं हुक शॉट ठीक नहीं खेल रहा, मैं पुल ठीक नहीं कर रहा, मेरा बैक फुट स्ट्रांग नहीं है, तो वहां तो कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है. बट आपने नेट प्रैक्टिस नहीं किया, आप सीधा कोई आईपीएल खेलने चले गए, फाइनल मैच खेलने चले गए, वहां पे यू डू अ स्मॉल goof अप और लोग ना बजा देते हैं आपकी पकड़ बिल्कुल. के. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट आई थिंक, अब सारे रिसोर्सेज सबके पास में है, राइट? व्हेन वी यूज्ड टू बी इन द कॉलेज, वी यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरीज, वहां से बुक पढ़ा करते थे. उस टाइम ब्लूटूथ नया नया आया था, तो ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ के बारे में पढ़ रहे हैं. उस टाइम गाने ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेड चला करता था, वो भी बहुत सिलेक्टेड फोन्स में था. You had to keep phones very close to each other, तब गाने ट्रांसफर हुआ करते थे. That also at a very small speed. 5 मिनट आप फोन ऐसे चिपका कर वो, तब एक गाना यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ करता था फोन में. जरा सा भी फोन हिल गया तो कनेक्शन ब्रेक हो गया. तो हमने देखा जी ब्लूटूथ क्या क्या होता है, ब्लूटूथ के बारे में पढ़ा. किसी फोन में, बहुत हाई एंड फोन में उस टाइम ब्लूटूथ आया करते थे, राइट? देन नई चीजें आई, फिर नई नई चीजें आई. जब तक हम पढ़ रहे थे तब तक इतनी ज्यादा एक्सेस थी नहीं चीजों को लेकर के. हम लोग वो डायल अप कनेक्शन भी यूज टू यूज, राइट? जब तक आप डायल अप यूज कर रहे हो तब तक आपके घर का जो फोन है दैट इज नॉट फंक्शनिंग ना. तो घर वाले कहते थे भाई ये बंद कर फटाफट, फोन आएंगे, फोन जाएंगे, राइट? अब यू हैव एवरीथिंग, अनलिमिटेड डेटा है, हाई स्पीड डेटा है, फुल ऑन फोन्स है, यूट्यूब है आपके पास में, ऑल अदर सोर्सेज आर देयर. इट्स जस्ट कि आपको उससे क्या सीखना है, राइट? क्या पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिविटी भी बहुत है नेट में, इंटरनेट में नेगेटिविटी भी बहुत है. तो आपको क्या सीखना है, किस तरफ अपने आप को लेकर के जाना है. लाइक यू सेड दैट यस, द पीपल हु आर कमिंग टू मीट मी दीज डेज, या जो कि आजकल मार्केट में आ रहे हैं बच्चे, दे नो अ लॉट, राइट? बट बोथ इन अ पॉजिटिव वे आल्सो एंड इन अ नेगेटिव वे आल्सो. ऐसी ऐसी चीजों की एक्सेस बहुत इजी हो गई है अब, राइट? जो कि बंदे को पूरा बिगाड़ सकती है. तो बहुत लोग उसकी तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करना चाह रहे हो, कोई अगर बच्चा सोचना चाह रहा है, राइट, उसमें ना देयर इज नो वन टू मॉनिटर यू. आप जब जॉब में जाते हो तो यू नो कि यार 9 बजे अगर मैंने चेक इन नहीं किया मेरे ऑफिस में तो हाफ डे की लीव लग जाएगी, या 6 बजे के बाद ही चेकआउट करना है, ये काम मुझे खत्म करके देना है. एंटरप्रेन्योरशिप में कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, राइट? यू नीड टू चेक योरसेल्व्स, राइट? वॉट एवर यू आर डूइंग, आप चाहो तो दिन भर सोलो, कोई आके बोलने वाला थोड़ी है आपको, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कि यार मैंने क्या कर दिया भाई, आज का दिन वेस्ट हो गया, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है. सो मतलब सब चीजें हैं आपके पास में, ऑल गुड थिंग्स आर देयर और ऑल बैड थिंग्स आर देयर. आप किसको ग्रैस्प करके आगे चल रहे हो, वो चीज आपको देखनी है, राइट? थॉट्स इतने, मतलब अब लेक्चर्स यूट्यूब पे आप देखो, या जो बाकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, शशि थरूर की आप स्पीच सुन रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की आप कोई स्पीच सुन रहे हो पुरानी, राइट? अपना बिल गेट्स की स्पीच सुन रहे हो, बराक ओबामा की स्पीच सुन रहे हो. ऑल दी नॉलेज इज देयर विद यू, what they are teaching, what good
things they are teaching, what कई लोग का कोई चीज से आप अग्री नहीं हो रहे हो, राइट? तो यू हैव एवरीथिंग देयर विद यू. उससे आपका विजन इतना ज्यादा ब्रॉड हो जाता है. जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं, दे नो अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? हमारे टाइम में ये था कि भाई आपको ये 2-3 काम ही करने हैं, या तो भाई इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर ही बनना है, या कोई स्पेसिफिक 2-3 फील्ड्स में ही जाना है. तीसरी फील्ड में जाना भी है तो आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट? इवन दो आपको म्यूजिशियन बनना है, तो आपको उसके लिए करना क्या है, यू डोंट नो, राइट? यू जॉइन अ गिटार क्लास विच इज देयर इन द कॉर्नर ऑफ योर गली, राइट? आपने गिटार क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने गिटार सीख लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? उस टाइम लोगों को मालूम नहीं था. बने उस टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस निकले, बहुत अच्छे अच्छे, बट दे वर वेरी फ्यू, राइट? राइट? अब यू हैव ऑल द प्लेटफॉर्म्स. आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल दो, आप किसी कैफे में जाकर के बजा लो, वहां लोग आपको चूज कर लेते हैं, आपको पिक कर लेते हैं. और बहुत सारे तरह के वो हैं प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो. टिकटॉक यूज्ड टू बी देयर, इंस्टाग्राम रील्स इज देयर, राइट? इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना करके डालो, इतने ज्यादा फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे इफ योर कंटेंट इज गुड, राइट? सो बहुत सारे तरीके हैं लोगों के पास में, बट like I said that you have to choose यार, which is good for you, which is bad for you. Something which is bad for you might be good for some people, something which is good for you might be bad for some people. आपको अपना टेरिटरी चूज करके चलनी है. बिल्कुल, ये नहीं सोचना सबको खुश करना है. यार वो आप कर नहीं सकते हो. कर नहीं सकते हैं, राइट? सो डेफिनेटली ये 3 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट ऑफ द लाइक इंटर्न्स का जो भी रेडी हुए थे क्वेश्चंस के, तो वो आपने आई थिंक यू हैव आंसर्ड a lot of wisdom has been shared. I will go to the last question. Meanwhile, like if anyone has questions, they can drop. You know that like there is a freelancing platform are growing, right? We are also have entered into a product we were making last year, FlexiWorky, which you also have tried by posting the requirements. So I want to know that like what is the future you are watching? You can see that these freelancing platforms will grow in the next 5 years or so, because as per the latest reports which I was watching recently on the Hindu newspaper a month back, in which they have shared there has been a great spike in number of people who are doing now freelancings, because now people are moving toward the gig economies, which we called कि एक स्किल अच्छी से आती है, उस स्किल पे मास्टरी कर ली, एंड दे आर वहां पे अपने आप को उन्होंने अपने एक्सेल किया, और वहां पे दे आर अ विनर्स in that field. So things have been changing. So what's your view on that? Like how this product can help? यार जैसे मैंने बीच में बताया था that in order to make a good product in the market, right? मार्केट में अभी करंट प्रॉब्लम क्या है, आप जिस सेगमेंट में जाना चाह रहे हो, राइट? व्हाट इज द करंट प्रॉब्लम? उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ के आप उसको ओवरकम कैसे कर रहे हो, राइट? So when I was going through your platform that you have made, right, beautiful UI, beautiful UX, right, उसको साइड में रखते हुए अगर मैं लॉजिक की बात करूं, right, the problem with the current freelancing platforms which are there in the market is number one, जो पीछे जुड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, या तो उस पे क्लाइंट्स हैं, राइट, या फिर उसके ऊपर मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं, करेक्ट? फ्रीलांसर्स are masters of coding, right? I am a very good, for example, Java developer. That person is very good Android developer, PHP developer, right? So उनका जो thought process है, जो developers का thought process होता है, that is towards making good code, right? Working होना चाहिए code को, जो भी check boxes होते हैं, right, which the code should have. ये लूप होल्स ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए. दे आर मास्टर टुवर्ड्स दैट, राइट? व्हाट दे आर नॉट गुड एट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द क्लाइंट, है ना? मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, मैंने वहां पे एक जॉब पोस्ट करी, मैंने कहा जी मेरे को ना, मेरी एक होटल है, मेरे को होटल का ERP बनाना है, करेक्ट? नाउ यू कोट मी द प्राइस, करेक्ट? पीपल ब्लाइंडली दे यूज्ड टू स्टार्ट they used to start quoting their prices, $1000, $1200, कोई कहता है $50, कोई कहता है $2000, राइट? विदाउट नोइंग कि ERP है क्या, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, बुकिंग सिस्टम होगा, ये होगा, वो होगा, राइट? सो दैट
these platforms basically they were and they are I mean, there is a place wherein the developers and the clients can meet, right? But a very major portion or a very major drawback of these platforms is कि developers को समझ नहीं आता बनना क्या है, right? मैंने मान लो ये जो example दिया, मैंने उसके लिए $100 का कोड किया, for example, right? The client who's there, who's sitting in the US, he is very happy कि यार ये तो $100 में बना देगा बंदा, वो straight away he gives you this project to do. राइट जब आपके पास आया एज अ फ्रीलांसर तब मालूम चला वो भाई साहब इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, महीने भर का काम है, राइट? आपने कोड किया था $100 केवल, राइट, विच इज 7,500 रुपए आपने कोड किए थे, दैट्स इट. तो यू फील चिटेड कि यार मैं तो महीने भर पूरा स्लॉग कर रहा हूँ और मेरे को कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, राइट? तो उसके लिए अगर कोई ये मेरे को बता दे कि भाई ये जो काम है ये इतने दिन का काम है, इस तरह का काम है, ये काम में जो कोई डिटेल क्वेरीज हैं वो कोई मेरी रिजॉल्व कर दे, सो आई विल बी इन अ पोजीशन टू पुट अ इंटेलिजेंट कोड. अभी जो मैं कोड कर रहा हूँ वो मैं हवा में कोड कर रहा हूँ, राइट? मेरे को वेबसाइट चाहिए, राइट? आई नीड अ 3-पेज स्टैटिक वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, है ना? किसी ने 100 रुपए कोड कर दिया, किसी ने 500 रुपए कोड कर दिया. 100 रुपए वाले को जब मैंने दी तो मैंने वेबसाइट में इतने ज्यादा उसको चीजें बताई. अच्छा, बीइंग अ क्लाइंट you cannot expect me to know all the technical jargons. मैंने कहा जी मुझे तो करेंसी कन्वर्टर भी चाहिए वेबसाइट में और कोई एपीआई यूज नहीं करनी है आपको, राइट? तो वो करेंसी कन्वर्टर बनाने बैठा है जी बंदा, वो डेली अपडेट हो रहा है करेंसी कन्वर्टर. दैट इटसेल्फ हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो I mean there was a disconnect between the giver and the receiver. Right. The giver can be the client, the receiver can be the freelancer. The giver can be the freelancer and the receiver can also be the client. मतलब क्लाइंट को जब कोई चीज बन के आ रही, क्लाइंट कहता है यार ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी, मेरा तो बोलने का मतलब ये था, राइट? द क्लाइंट ऑल्सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, या वो उसने जो भी लिखा है उससे बिल्कुल सब चीज समझ में आए. तो कई बार क्लाइंट की गलती भी नहीं है, कई बार बच्चे की गलती भी नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों सफर कर रहे हैं. ये जो प्लेटफॉर्म है, द गुड थिंग विच आई फाउंड अबाउट दिस प्लेटफॉर्म वाज कि आप कोई रिक्वायरमेंट, कोई भी कॉर्पोरेट अगर पोस्ट कर रहा है या कोई भी क्लाइंट पोस्ट कर रहा है, तो आपकी जो टीम है वो उसको समझती है, राइट, एनालाइज करती है, देन यू पास इट ऑन टू द डेवलपर्स कि नाउ यू गिव अस द कोड, ये चीज बननी है, ऐसे ऐसे चीज बननी है. तो जो भी डेवलपर का कोड आ रहा है वो इंटेलिजेंट कोड आ रहा है, राइट, बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? उसमें जिसको भी काम मिल रहा है वो ही इज नॉट फीलिंग चीटेड. अगर मान लो मैंने सोचा कुछ और था और मेरे ख्याल से तो ये $100 का काम होना चाहिए, बट नो, फ्लेक्सीवर्की की टीम ने आके मुझे कहा कि भाई ये 4 महीने का काम है जो आप $100 जिसके लिए कोड कर रहे हो, दिस थिंग ऑल्सो नीड्स टू बी डन, दिस थिंग ऑल्सो नीड्स टू बी डन, राइट? सो अकॉर्डिंगली कोड तो देन आई विल ऑल्सो करेक्ट माई सेल्फ कि नहीं यार ये तो बड़ा काम है थोड़ा. So this is the good thing which I found about the platform, and that's the reason I have been using it to post some of the jobs and the openings which are there. Yeah. So thanks means like for answering this, and before leaving, like we are running out of the time, the one question is there, that is, according to you, which sector is most growing and which was lost in COVID-19? And yeah, first question this, then there is one more question. Which sector is most growing, which is lost in COVID-19? यार जो sectors बहुत ज़्यादा impact हुए हैं, right? I would say the travel industry. It has been impacted a lot. मतलब I have been getting calls from many 5-star hotels जो कि peanut की pricing के ऊपर आपको 3 nights 4 days का stay भी दे रही हैं. उदयपुर में एक होटल है विच सेज के बॉस आप ना वॉलेट लेके ही मत आओ घर से. मतलब उसने मेरे को ऑफर दिया, आई स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट, आई विल शेयर इट अक्रॉस विद यू. वो कहती है जी घर के नीचे आपके लिए BMW में शॉफर रहेगा, ही विल पिक यू अप. उदयपुर इज अराउंड व्हाट 750 किलोमीटर्स अवे, राइट? ही विल ड्राइव यू देयर, वहाँ होटल में रहना, होटल में खाना, वहां से वापस आना,
वो गाड़ी में आपको छोड़ के बिल्डिंग के नीचे जाएगा आपके, राइट. This is the level of desperation that the hotels are having, right? Yeah. All the complete sector is having, right? So that sector is in a pretty bad shape, right? I am working towards, I'm working with some of the people of that sector के क्या किया जाए अब, right? मतलब वापस से the number of cases have increased, वापस से कुछ ट्रैवल के लॉकडाउन्स लग रहे हैं, कहीं से आप नहीं आ रहे हो, कहीं से आप जा नहीं रहे हो. People are sort of restraining themselves to going to new cities, to another cities to travel, right? So that sector has taken a toll, in my opinion. Sectors jinka benefit hua hai, yes, IT is one of them, right? FMCG sector is one of them, right? लोगों ने इतना सामान खरीदा, इतनी नई नई चीजें बनाई है पूरे लॉकडाउन में, Right. तो महीने का राशन का एक्सपेंस था, that has gone up multi-folds, right? So but yes, यार देखो Travel. करेक्शन ना हो जाता है कुछ टाइम में. This is a tough time, right, which some sectors are facing, but वही धीरे धीरे कुछ कुछ अगर वो कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, then there will be a time जब वापस ट्रैवल बूम पे होगा, और बूम पे ऐसा होगा which I feel, क्योंकि कोई बंदा साल 1.5 साल से बाहर गया नहीं है ना, मतलब किसी को आपने ऐसा कन्फाइन करके रखा है छोटे से घर में, फिर जिस दिन कहा कि जी अब कोरोना चला गया है, नाउ यू आर फ्री टू गो, राइट, आपके इशू नहीं होगा, तो पीपल विल स्टार्ट फ्लॉकिंग अराउंड लाइक एनीथिंग. जो स्पेशली राजस्थान, गोवा, यहाँ वहाँ के जो स्पॉट्स हैं, मतलब वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ जाने वाली है. बट यस, दीज आर टफ टाइम्स, दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, बट अच्छा टाइम भी आएगा. How Right. soon or how late we cannot say, but yes, it will come. Okay, so one question more is from Neha. How company looks before hiring an intern? What if they not belongs to technical background? Yeah, देखो, this depends from company to company, right? Some companies, they give a lot of value, or they give a lot of emphasis on the past history of the student, right? A past history of the intern. Again, like I said, सबका अपना अपना school of thought है, right? वो मुझे नहीं कह सकता कि मैं गलत हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गलत है. His गाड़ी is also running fine and my गाड़ी is also running fine, right? We are good in our own ways, right? तो कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि कहती है कि नहीं यार, बच्चे मुझे यहीं से चाहिए, मतलब इसी कॉलेज से चाहिए, या आपके 70% प्लस होने चाहिए, राइट? आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. उनका थॉट प्रोसेस ये है कि यार जिसने कंसिस्टेंटली मेहनत करी है, राइट, चांसेस हैं कि आगे भी वो अच्छी मेहनत करेगा बंदा. हेलो, Yeah, you're audible. ओके, ग्रेट, राइट. सो कई कई कंपनीज का थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे जिस बंदे ने पहले 10th में अच्छे मार्क्स लाया, 12th में अच्छे मार्क्स लाया, फिर आईआईटी क्लियर किया या कोई ऐसा एग्जाम क्लियर किया, फिर उसने आईआईएम से एमबीए किया, तो मींस उसका दिमाग तो तेज है ही है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, बट वो मेहनत करने में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है. Okay. राइट, तो कुछ भी अगर कंपनी में कुछ भी, जैसे कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत ज्यादा लॉजिक्स ये सब करने हैं, तो वो बैकआउट नहीं करेगा बंदा, राइट. सम कंपनीज दे से कि भाई मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट केयर अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट. Same here, sir. मेरे यहाँ पे बहुत बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके बीटेक में 65% या 55%, किसी के 12th में 50%, 55%. कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बीटेक क्लियर ही नहीं हुआ है अब तक, जो वो 2-3 साल की चली आ रही है, बैकलॉग्स चली आ रही है. डजंट मैटर यार, दे आर गुड एट डूइंग अ स्पेसिफिक थिंग्स, सो दे आर डूइंग दैट. Exactly. Marks doesn't matter at the end of the day, and even their अभी एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ क्रेड का भी, क्रेड के जो ओनर है कुणाल शाह, जो फ्री चार्ट्स पहले उन्होंने बनाई थी, तो ही इज नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. वो एक फिलॉसफी या कुछ इसके स्टूडेंट थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ही वाज नॉट फ्रॉम अ
टेक्निकल बैकग्राउंड, तो इट डजेंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, स्टिल लर्निंग कर रहे हो आजकल, तो किसी भी उसमें आके यू कैन। मेरे पास में जो भी मेरे सेल्स हेड हैं, या जो सेल्स डायरेक्टर भी हैं हमारे, या जो सेल्स मैनेजर भी हैं, वो तीनों बीटेक हैं, हाँ राइट? सो दे डिड समथिंग टेक्निकल इन देयर अर्ली 20s, या जब आपको बहुत चीजें मालूम भी नहीं होती हैं कि यार हाँ करना भी है कि नहीं करना। कई बार आप पीयर प्रेशर में कुछ कर लेते हो, कई बार कुछ और हो जाता है, राइट? Then slowly they thought, yeah, that is not my cup of tea. जैसे even I thought I am from a technical background, but I haven't done coding ever in my life, right? Sooner or later I realized that coding is not my cup of tea. Sales is my cup of tea. So I am good at convincing people. I am good at generating logics, listening to people, समझाना, बात करना, चीज बेचना. So we shifted to that, to the sales stream, right? So not only for the technical, even for the non-technical streams also, है ना? चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे आप सेल्स में हो, डजेंट मैटर यार आपने एमबीए किया है कि नहीं किया है. कई बच्चे एमबीए करने के बाद भी इतना अच्छा नहीं कन्विंस कर पाते या अच्छा बेच नहीं पाते जितना एक 12th पास बच्चा भी बेच लेता है, राइट? राइट उसके लिए आपके जो लॉजिक्स हैं या जो आपका थॉट है, दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर. राइट So there is no, for me, or if you see my opinion, there is no thumb rule for that कि अच्छे इंटर्न में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, या कंपनी को क्या चीज चाहिए होती है. डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. हर तरह की कंपनी है मार्केट में, राइट? अब आप, यू नीड, दे नीड टू पिक एंड चूज यू, और you need to pick and choose them. या All the options are there in the market. so like first of all, like we are running out of the time, so in that, like I want to first of all very like for the live audience who like listen and taken the wisdom, and Jalat sir, you shared your wisdom, we are very thankful to you, आपने बहुत अच्छे अच्छे लेसन शेयर बिल्कुल किए. अभी कुछ खास है नहीं, हाँ हाँ जितना छोटा मोटा काम किया है उससे ही जो सीखा है, लाइक आई सेड दैट, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है या जो एग्जांपल्स हैं, उन्हीं से आप बहुत कुछ. राइट पॉजिटिव लेकर के सीखते हो, दैट्स इट. राइट मैं अभी ये छोटे छोटे एग्जांपल्स ही बहुत मैटर करते हैं. एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी, वो भी, उनका मैं सुनता रहता था कि पंखे से भी मोटिवेशन, सोफे से, सो इट्स लाइक या डेफिनेटली आप हर चीज से सीख सकते हो. सो इन द एंड सर, व्हाट वन लाइन मैसेज यू वांट टू शेयर टू कनेक्टिंग द डॉट्स फैमिली एंड फ्लेक्सीवर्क, आवर फर्स्ट प्रोडक्ट. Keep up the good work. The product that you have developed, I am very sure that it will pinpoint to that specific problems that the people are facing, right? Like I said, that दोनों end पे जो लोग हैं, clients भी हैं और जो freelancers भी हैं, that's a very valid hole जो आपने pick किया है, और very very valid black area जो आपने pick किया है, right? तो लगे रहो. Wherever any help is required, please let me know. प्लीज. Even if the pace is slow, which I am sure कि pace slow नहीं होगा, अगर कभी pace slow भी होता है तो don't give up, और at the end of the day things will be better. And we will be waiting for your more and more opportunities. यार भगवान करे जल्दी ज्यादा से ज्यादा आए और मैं आपको दूं. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. Okay, then thank you so much, sir, for your time. Have a good day. So much. Thanks everyone. Live. Yeah. चल, great है सर, thank you so much. Okay, bye bye. Thanks, bye bye. Bye.